Hi students, we are going to start with simple harmonic motion, lecture number 2. Today I will be discussing spring system. यहाँ पर हमको पता है कि एक हेलिकल स्प्रिंग है of natural length. What do you mean by natural length? Natural length means इसमें कोई खिंचाव नहीं है. There is no extension nor there is a compression. So how much is the net restoring force acting on the spring right now? 0. Because F का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना, F is equal to minus kx. So if there is no extension, the restoring force is also 0. And since the restoring force is 0, there is no energy stored in it. So this was all about natural length. अब हम आगे बढ़ते हैं. Suppose if I take the spring and if I stretch it by a distance of x, इसको हमने खींच लिया. How much is the extension? X. तो हमको पता है कि यहां पर एक restoring force act करेगा which will be directed towards the mean position. And this force, restoring force acting on the spring is minus kx. Minus sign because it is opposite to x. X is away from the mean position. Force is towards the mean position. And this force का नाम है restoring force. What is k called as? K is called as spring constant. X is the displacement measured from the mean position. तो हमको पता है कि यहां पर एक फोर्स आ जाएगा. अच्छा, इसी के कारण इस स्प्रिंग में देयर विल बी एन एनर्जी स्टोर्ड. एंड व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग? आपने डेरिवेशन किया है थियरी में. इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. यस और नो? ओके. सो द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, आपने खींचने में काम किया. That work done is not wasted. Work done will be stored in the form of potential energy, and that potential energy which is stored in the spring will become half kx square. अच्छा, और एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि k is inverse to length of the spring. Suppose there is a spring of length L. Natural length कितना है इसकी? L है. अब मैंने इसको दो भाग में काट दिया so that two parts will become L by 2 and L by 2. बराबर है? So always remember one thing, that K, the spring constant, is inversely proportional to length of the spring. Okay? So अगर inverse रहेगा तो यहाँ पर hyperbola graph आएगा. And if L is becoming half, then K will become twice. तो अगर इसका K था, spring constant K था, तो इसका spring constant कितना हो जाएगा? 2K. And इसका spring constant भी हो जाएगा 2K. Yes or no, beta? So if the length becomes 1/n of L1, then K becomes n times K1. देखो ना, it is inverse ना. तो अगर ये n times कम हो जाएगा तो ये n times बढ़ जाएगा. ये constant fact हमको याद रखना है कि spring constant is inversely proportional to the length of the spring. अच्छा ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. Can I say work done in stretching the spring from L1 to L2? खिंचाव पहले कितना था? L1. बाद में कितना हो गया? L2. Work done का फॉर्मूला पता है ना? It is potential energy final minus potential energy initial. What is potential energy? Half kx square. So it will become half k L2 square minus half k L1 square. So half k L2 square minus L1 square. Suppose there are two springs of spring constant K1 and K2 such that K1 is greater than K2. आपको पूछा है find the ratio of the work done when their extensions are the same. x1 is equal to x2 दिया हुआ है, K1 is greater than K2 दिया हुआ है. वर्क डन फाइंड करना. अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये रहेगा x1 स्क्वायर and 2 रहेगा हाफ k2 x2 स्क्वायर. और हमको मालूम है x1 x2 सेम है, हाफ हाफ सेम है. सो ये हो जाएगा k1 अपॉन k2. and if k1 is greater than k2 then w1 will also be greater than w2. समझ आया ना? सो सपोज दो स्प्रिंग होते हैं जैसे k1 और k2, and K1 is greater than K2 and X1 is equal to X2, the ratio of their work done will be K1 upon K2, and if K1 is greater than K2 then W1 will be greater than W2. सपोज और आगे बढ़ते हैं. सपोज दो स्प्रिंग्स है अभी फिलहाल, और
there are two springs. Again, K1 and K2 such that K1 is greater than K2. And यहाँ पर कह रहा है the forces are the same. Find the ratio of the work done. अच्छा सर, अच्छा अगर F1 F2 सेम है, can I say minus K1 X1 will become equal to K2 X2 minus minus cancel हो गया, so it will be K1 upon K2. Yes or no? What will be K1 upon K2? X2 by X1. Yes or no? अब क्या चाहिए हमको? I want to find the ratio of the work done. What will be the formula for work done? Work done will become half kx square, right? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W1 upon W2 is half K1 X1 square upon half K2 X2 square, half cancel. Can I write this as K1 upon K2? अच्छा X1 upon X2, X1 upon X2 को लिख सकते हैं K2 upon K1 the whole square, so it will become K2 square upon K1 square. So this will be written as K2 by K1 is W1 by W2. So I know that if K1 is greater than K2, then K1 is greater than K2, then W2 will be greater than W1. तो याद रखना जब भी forces same होते हैं तभी the ratio of the work done will be K2 by K1, and जब भी extension same होता है the ratio of the work done will become K1 by K2. याद रखना ये चीज, is the standard result. Okay sir? So we are going to start with spring pendulum now. Suppose यहाँ पर एक pendulum है, spring है, which is in the natural length. अब ध्यान देना क्या हो रहा है. नेचुरल लेंथ मतलब इसमें कोई खिंचाव नहीं है, कोई फोर्स नहीं है. अब आपने यहाँ पर है ना एक मास लगा दिया, यू पुट अ मास ओवर हियर. सो इफ आई अटैच अ मास, बेटा इट गेट स्ट्रेच्ड. सो वो स्लोली यू ब्रिंग इट डाउन, तो वो स्ट्रेच होते 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 एक पोजीशन तक आएगा विच इज कॉल्ड एज इट्स मीन पोजीशन, where the net force will become equal to 0. इसका मतलब क्या होता है, नीचे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, mg, ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा बेटा, kx नॉट, where x नॉट is the distance covered from the mean natural length. बोलो, ये उसका मीन पोजीशन है ना बेटा, ये उसका नेचुरल लेंथ का कंडीशन था. तो कैन आई से इधर से इधर तक वो खिंचाव आ गया, एंड हाउ मच इज दिस खिंचाव, x नॉट, एंड एट दिस पॉइंट kx naught will become equal to mg. Can I say net force कितना हो गया, 0, and net force जहां पर 0 होता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन. फिर से देखो, एक स्प्रिंग पेंडुलम था, नेचुरल लेंथ उसका था, खिंचाव नहीं था. Now when you attach a mass, it will come down by x naught, and the net force will become equal to 0. Net force mean down is equal to up, means mg will become equal to kx naught. This is its mean position. ऑसिलेट नहीं कर रहा है, रुका हुआ है. अब आपने इसको खींचा, कितना खींचा सर, और x खींचा. यस और नो? कैन आई से जितना आप खींचेंगे अभी, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा. कितना रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा सर, बनेगा kx. यहां पर तो फोर्स बैलेंस हो चुका है, kx नॉट को काउंट मत करना, क्योंकि kx नॉट इज बैलेंस बाय mg, तो ये तो नेट फोर्स 0 हो गया. SHM happens because of unbalanced restoring force. तो यहां पर जो आपने खींचा है ना x, उसके कारण एक अनबैलेंस रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, एंड वो अनबैलेंस रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा बेटा, माइनस kx. बोलो. एंड इस अनबैलेंस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ही SHM होगा. अच्छा, आई नो दैट दिस अनबैलेंस रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, F इज माइनस kx. F को लिख सकते हैं ma इज माइनस kx. So can I say A will become equal to minus K by M into X? But हमको मालूम है SHM का condition is A is minus omega square X. So what will be omega square equal to beta K by M? So what is omega equal to root K by M? So what is time period equal to, sir, 2 pi by omega, that is 2 pi under root M by K. बोलो. ये डेरिवेशन शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं.
मगर सिर्फ मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे स्प्रिंग पेंडुलम का कंडीशन होता है। फिर से एक बार देखेंगे, स्प्रिंग पेंडुलम इज इन द नेचुरल लेंथ, कोई खिंचाव नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, नेट फोर्स 0 है। अब आपने एक मास लगाया तो नीचे जाएगा, एक पॉइंट ऐसे आएगा, विद द नेट फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0, मींस mg will become equal to kx naught, where x naught is the distance from the natural length to the mean position। इधर नेट फोर्स 0 हो गया, अब आपने और खींचा तो एक अनबैलेंस रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, जिसके कारण वो ऐसे जंप करेगा। एंड व्हाट इज दैट अनबैलेंस रिस्टोरिंग फोर्स? माइनस kx। Can I do f with ma? A will become minus k by m into x, so k by m is omega square, so omega will become root k by m, so t is 2 pi by omega, that is 2 pi root of m by k। एक चीज देखने में यहाँ पे आती है कि स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, तो चाहे आप चांद पर लेकर जाए इसको, टाइम पीरियड इसका बदलने वाला नहीं है। It only depends on the mass which is attached to wire. Greater is the mass, greater will be the time period. It is inversely proportional to spring constant. Greater is the spring constant, lesser will be the time period. Okay sir, so t is 2 pi root of m by k आपको स्प्रिंग पेंडुलम के लिए याद रखना है। Yes or no? अच्छा, एक इसमें कुछ कंडीशंस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। सपोज, अच्छा ये जो स्प्रिंग था दैट वाज मासलेस, सपोज एक स्प्रिंग हम यहां पर लगाते जिसके पास मास m होता, एंड यहां पर हम लगाते छोटा m, दिस वाज मासलेस एंड द टाइम पीरियड केम 2 pi root of m by k। बट स्प्रिंग के पास अगर मास m है तो द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड विल बिकम t is 2 pi root of छोटो m प्लस m by 3 by k। ये सब डेरिवेशन से प्रूव हुआ है, मगर आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको नीट में देना है, नीट में जनरल फॉर्मूला ही काम लगेगा। सो t will become 2 pi root of small m plus m by 3 by k। Getting it what's happening? So this is spring of mass capital M which is attached to a mass small m। याद रखना ये चीज। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इसका केस जो रहेगा, सपोज देयर आर टू मासेस m1 एंड m2, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट लगाया k का, आपने इसको ऐसे दबाया और छोड़ दिया तो ये ऐसे 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 करके वाइब्रेट करेगा। टाइम पीरियड ऑफ दिस होल सिस्टम विल बी रिटन एज 2 pi root of under root mu by k, where mu is called as m1 m2 upon m1 plus m2। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, याद रखना है आपको। तो जब ऐसे मास रहेगा m1 and m2, so can this be replaced like this by mu? Yes or no? Where mu will become what sir? m1 m2 upon m1 plus m2। तो वही तो हो गया, देखो यही तो है। टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 pi root of m by k, बट m की जगह क्या लिखना है? m1 m2 upon m1 plus m2 which is called as reduced mass। Are you all understanding what's happening? तो ये चीज आपको फिलहाल याद करनी है, ओके, स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे आपको आगे काम लगेगी। सी पॉइंट पर आते हैं। सपोज देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन और आपने स्प्रिंग पेंडुलम ऐसे रख दिया मास m का, इसको खींच लिया और छोड़ दिया, टाइम पीरियड का क्या होगा? टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम एज दैट ऑफ दिस पेंडुलम, इट विल रिमेन 2 pi root of m by k, ओनली द मीन पोजीशन विल चेंज। इसका मीन पोजीशन यहां था, इसका मीन पोजीशन कैसे रहेगा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। सपोज मीन पोजीशन, नीचे कौन सा फोर्स लेकर जा रहा है बेटा? नीचे कौन सा फोर्स लेके जा रहा है? mg sin थीटा। एंड सपोज यहां पर सपोज इतना खिंचाव आ गया, लेट दिस खिंचाव भी x नॉट, कैन आई से इट विल बी kx नॉट, सो कैन आई से इन दिस केस kx नॉट विल बिकम इक्वल टू mg sin थीटा। ये कौन सा कंडीशन है? उसके मीन पोजीशन का कंडीशन है। इधर मीन पोजीशन का कंडीशन वाज kx नॉट विद mg, इधर kx नॉट इज इक्वल टू mg sin थीटा। यस और नो? अब इसके नीचे हम लोग खींचेंगे ना, ये तो नेट फोर्स 0 हुआ यहां पर, इसके नीचे हम लोग खींचेंगे ना तो वो SHM करेगा, एंड द नेट एक्स्ट्रा फोर्स व्हिच इज देयर विल बी माइनस kx ओनली, सो द टाइम पीरियड इज गोना बिकम 2 pi root of m by k ओनली द मीन पोजीशन विल चेंज, नथिंग एल्स। टाइम पीरियड इज गोना रिमेन द सेम। गेटिंग इट? डी पॉइंट। सब वो दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं m1 m2, m1 जमीन m2 जमीन पर रखा हुआ है, m1 ऊपर है, और इसको आपने दबाया और छोड़ दिया तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसका टाइम पीरियड रहेगा 2 pi root of mass of the oscillating particle। who is the oscillating particle? m1 upon k। t is 2 pi root of mass of the oscillating particle upon k। तो ये चीज हमको याद रखनी है, हमको सब न्यूमेरिकल्स में काम लगेगी स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे। आई होप एवरीवन विल रिमेंबर दिस थिंग।
तो बेटा वी आर स्टार्टिंग विद स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो हम लोग यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे, देख लो। सपोज दिस इज द सीलिंग, यहाँ से एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1, दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट K2 लगाया गया विद द मास m, बराबर है। मीन पोजीशन से इसको नीचे खींचा, बाय डिस्टेंस ऑफ x हमने खींचा, बोलो इसको हमने नीचे खींचा फ्रॉम द मीन पोजीशन बाय डिस्टेंस ऑफ x, बोलो। तो कैन आई से अगर इसमें एक्सटेंशन आ रहा है x1 और इसमें एक्सटेंशन आ रहा है x2, सो इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, F1 विल बी माइनस K1 x1 एंड इसमें एक फोर्स जनरेट होगा विच इज माइनस K2 x2, बोलो। Why माइनस? बिकॉज इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। x1 और x2 तो नीचे है ना, तो F1 F2 ऊपर रहेंगे बिकॉज दे आर रिस्टोरिंग फोर्स। I can tell you that x will be x1 plus x2. Total खिंचाव will be खिंचाव in this plus खिंचाव in this. Yes or no? अच्छा, can I say that x1 को लिख सकते हैं F1 by K1 माइनस साइन के साथ, इसको भी लिखेंगे F2 by K2 माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा नेट फोर्स by K इक्विवेलेंट। Yes or no? What's happening? पर एक चीज हमको पता है कि जितना फोर्स इधर आ रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, उतना दे आर कनेक्टेड सिस्टम, राइट। तो जितने फोर्स से अगर आपने खींचा उतना ही फोर्स यहां पर आएगा, उतना ही फोर्स यहां पर आएगा। सो कैन आई से F1 एंड F2 विल कैंसल आउट ईच अदर, बिकॉज यहां से आपने एक फोर्स दिया ना, सपोज mg फोर्स दिया, तो यहां पर वही mg जनरेट होगा, यहां पर वही mg जनरेट होगा, बिकॉज दे आर मासलेस स्प्रिंग्स। यस और नो? सो कैन आई से 1 अपॉन k इक्विवेलेंट, ये माइनस आएगा, विल बिकम 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। सो k इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं बेटा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। यस और नो? व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा? टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ m बाय k इक्विवेलेंट। तो आई आर अंडरस्टैंडिंग स्प्रिंग्स इन सीरीज। तो जब भी स्प्रिंग्स इन सीरीज हो, k सीरीज का फॉर्मूला रहेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। प्लीज बी अलर्ट इन दिस थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डू बेटा स्प्रिंग्स इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब होगा टू कॉमन पॉइंट्स। आप देख सकते हो स्प्रिंग का एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर है, सीलिंग पर है, और दूसरा कॉमन पॉइंट जो है वो मास पर है, दिख रहा है। एक कॉमन पॉइंट ये है और एक कॉमन पॉइंट ये है। तो व्हेनेवर लाइक दिस सिस्टम इज देयर, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। सीरीज में एक के बाद एक होते हैं, एंड पैरेलल में ऑलवेज रिमेंबर देयर हैज टू बी टू कॉमन पॉइंट्स, वन कॉमन पॉइंट ऑफ ईच एंड वन कॉमन पॉइंट ऑफ ईच। अब सपोज हमने इस मास को नीचे खींच लिया बाय डिस्टेंस x। अच्छा, ये भी पैरेलल सिस्टम है, आप बता सकते हो। एक कॉमन पॉइंट देखो मास की तरफ एंड एक कॉमन पॉइंट वॉल की तरफ। तो ये भी वॉल है, ये भी रिजिड सरफेस है, ये भी रिजिड सरफेस है, तो कॉमन पॉइंट, और ये मास है, ये मास है, तो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। सीरीज में नहीं है ये। सपोज आपने मास m को नीचे खींच लिया बाय डिस्टेंस x, तो कहना है अगर ये x खींचा जाएगा तो ये भी x खींचा जाएगा, ये भी x खींचा जाएगा। अगर ये ज्यादा एक खींचा जाएगा, एक कम खींचा जाएगा, तो ये टेढ़ा हो जाएगा ना बेटा। That means if this is pulled by x, this also has to be pulled by x, and this also has to be pulled by x. So a restoring force will be generated as K1x and K2x. So can I say the net force acting will be F1 plus F2? ये force divide हो गया। पीछे force same था because एक ही string का हिस्सा था वो, because it was a massless spring, बराबर है क्या? तो tension at all points is going to remain the same। और यहाँ पे दो अलग अलग है, तो इसमें टेंशन अलग आएगा, इसमें फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स अलग आएगा, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अलग आएगा, एंड द नेट रिस्टोरिंग फोर्स विल बी F1 प्लस F2। बट F को लिख सकते हैं माइनस K1x माइनस K2x माइनस K इक्विवेलेंट x। यस और नो? तो x x x कैंसिल हो गया, तो K इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा? K1 प्लस K2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई रूट ऑफ m by k equivalent, where k equivalent in parallel is going to become K1 plus K2। तो हमने k सीरीज के बारे में पढ़ा, याद रखना। दो स्प्रिंग्स अगर सीरीज में रह गए तो फॉर्मूला विल बिकम K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, एंड अगर k पैरेलल होगा तो बेटा कैसे लिखेंगे? इट विल बी K1 प्लस K2। प्लीज रिमेंबर दिस कंडीशंस। अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। If I take a simple pendulum of length L,
बोलो दिस इज द बॉब ऑफ अ मास m. आपको पता है डेरिवेशन हम कर चुके हैं. दिस एंगल इज थीटा. बोलो यहाँ पर होता है mg, उसको हम तोड़ते हैं mg sin थीटा mg cos थीटा में. एंड फिर हमने एक डेरिवेशन किया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी. बट इस डेरिवेशन में कंसिडरेशन हमने क्या लिया था कि थीटा इज वेरी 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 स्मॉल. और एक चीज, द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज वेरी मच लेसर देन रेडियस ऑफ द अर्थ. बोलो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है बेटा? 6400 किलोमीटर. उससे तो बहुत कम है. ये जो लेंथ है पेंडुलम का, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, दैट इज वेरी लेस. ये चीज हमने पोर्शन में पढ़ी, which is 2 pi root of l by g, where theta is very small and l is very much lesser than re, which is the radius of the earth. First consideration, if simple pendulum is compared with or comparable with radius of the earth, then time period का formula हो जाएगा 2 pi root of re 1 plus re by l into g. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. What is re? Radius of the earth. 1 plus re by l into g. अब इसमें और केसेस है, देखते हैं केस 1. If there is a simple pendulum of infinite length, मतलब l कितना हो गया बेटा? इन्फिनिटी. तो l अगर इन्फिनिटी हो गया तो 1 upon infinity 0 होता है. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई रूट ऑफ आर ई बाई जी. सो अगर एक सिंपल पेंडुलम बनाया बहुत लंबा, बहुत इनफाइनाइट लेंथ का, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ आर ई बाई जी, विच आंसर विल कम 84.6 मिनट्स. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर. ये सब चीजें आपको याद रखनी है. बोलो यस और नो. अच्छा, केस 2. इफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब एक ऐसे बड़ा पेंडुलम बना दिया जिसका लेंथ जो है रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है. आई विल पुट इट ओवर हियर. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ आर ई. बोलो आर ई बाई आर ई 1 होता है, तो हम 2g. यस और नो. सो अगर इसका आंसर है 84.6 मिनट्स, तो इसका आंसर रहेगा 84.6 मिनट्स डिवाइडेड बाय रूट 2 मिनट्स. बोलो रूट 2 बाहर आ जाएगा ना, रूट 2 मतलब 1.41. सो आप ये डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा. यस और नो. अच्छा, अब और एक कंडीशन देखते हैं. इफ सिंपल पेंडुलम is put in a liquid of density sigma, या डेंसिटी हम पकड़ते हैं रो लिक्विड, क्या ऑसिलेशन होगा? हाँ सर ऑसिलेशन होगा, मगर क्या होगा? मतलब ये चीज हमने पानी में डाल दी या लिक्विड में डाल दी और वो ऑसिलेट कर रहा है इन अ बीकर. हाँ बेटा, कितना डेंसिटी है इसका? रो है. और इसका खुद का डेंसिटी कितना? रो एस, रो सॉलिड एंड रो लिक्विड. समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे. अच्छा, आप सिर्फ बॉब की तरफ देखो बेटा. ये ऐसे वेट कहाँ है? नीचे. ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? अपथ्रस्ट. यस और नो. अच्छा, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला जिन लोगों को याद नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज वी रो लिक्विड इनटू जी. फ्लूइड्स में पढ़ाया जाएगा. वी रो लिक्विड इनटू जी. एंड एम जी, एम को लिख सकते हैं बेटा वी रो जी. दिस विल बी वी रो सॉलिड इनटू जी. बोलो, बट इसको तो ऐसे ऑसिलेट करना है ना, ये ज्यादा होना चाहिए ना. अरे भाई ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो ये तो ऊपर जाते रहेगा, ये तो बाहर आ जाएगा. दैट मीन्स अगर इस फोर्स को ज्यादा होना चाहिए तो ही तो नेट फोर्स बनेगा. यस और नो. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेट फोर्स? वी रो सॉलिड जी
माइनस वी रो लिक्विड जी, यस और नो, विल बिकम, एफ नेट को लिख सकते हैं एम जी इफेक्टिव, विल बिकम वी रो सॉलिड जी माइनस वी रो लिक्विड जी, बट एम को लिख सकते हैं वी रो। अच्छा एम इज व्हाट, वी रो ना बेटा, अरे भाई मास इज नथिंग बट वी इनटू रो सॉलिड, कैन आई वी कैंसिल, सो व्हाट विल बी जी इफेक्टिव बेटा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा देख सकते हो आप लोग, जी इफेक्टिव विल बिकम, जी इफेक्टिव विल बिकम, रो सॉलिड नीचे आ जाएगा, रो सॉलिड नीचे आ गया, सो विल बिकम जी माइनस जी रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, सो जी इफेक्टिव हो गया जी 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। आई और अंडरस्टैंडिंग, ये आपको डिराइव करना नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड द टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव, वे जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या रहेगा, जी 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड। सो अगर एक पेंडुलम को हमने एक लिक्विड में डाला है तो ये सब चीज तो ठीक है, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला रहेगा जी 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, ओके, एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, ओके नेक्स्ट जो भी पॉइंट था, कैन आई से एक सिंपल पेंडुलम हमने लिया, इस बॉब को हमने चार्ज दे दिया प्लस की, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नीचे लगाई, बोलो। अच्छा आप देख सकते हो कि वेट कहां पर एक्ट करता है इस बॉब का, नीचे mg। अच्छा आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर आपने पढ़ा है तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो इट विल एक्सर्ट अ फोर्स in the direction of the electric field and will become QE. So can I say the net force acting on the bob downward will become mg plus QE? बोलो। F net को लिख सकते हैं mg effective will become mg plus QE. Can I divide by m? So g effective क्या हो जाएगा भाई? g plus QE by m. एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई रूट ऑफ क्या भाई L बाय जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की जगह क्या पुट करना है आपको, G प्लस क्यू ई बाय एम। एक और एक चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे नहीं होके ऊपर होती तो क्यू ई ऊपर आता, तो यहाँ पर होता एम जी माइनस क्यू ई, तो ये हो जाता G माइनस क्यू ई बाय एम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। आई और अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? You can refer to your sheets and it is same thing which is given in the books, okay? I hope you all are understanding what's happening. और एक केस देखते हैं, चलो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पेंडुलम, हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसने आपको इसने ओके आपने इसको चार्ज दिया Q, इसका वेट कहाँ पर एक्ट करेगा, नीचे, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा बेटा, QE ऐसे एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कैन आई से रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा, सो F नेट विल बी अंडर रूट, बोलो, mg द होल स्क्वायर प्लस QE द होल स्क्वायर, बट F नेट इज m into g effective will become under root of mg the whole square प्लस QE द होल स्क्वायर। m से डिवाइड कर दो, इसको अंदर ले लो तो ये m निकल ही जाएगा, सो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, g इफेक्टिव विल बिकम अंडर रूट g स्क्वायर प्लस QE बाय m द होल स्क्वायर, एंड टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई रूट ऑफ L बाय g इफेक्टिव। ओके, सो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर इन दैट केस। Now beta we are discussing simple pendulum in lift। लिफ्ट है,
ओके सिंपल पेंडुलम ऐसे है, बराबर है, बोलो। एंड सिंपल पेंडुलम इज गोइंग, द लिफ्ट इज गोइंग अप विद द वेलोसिटी v, कैन आई से वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना है इसका, 0, बोलो। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हुआ तो टाइम पीरियड कितना रहेगा, वही रहेगा जो पहले था, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, बिकॉज इट इज अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सपोज सिंपल पेंडुलम एक लिफ्ट में होता, where the lift will be accelerating upward, where is the lift accelerating बेटा, upward। बॉब की तरफ देखो, बॉब ये कौन से फ्रेम है रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल, तो यहाँ पर mg आएगा और एक सूडो फोर्स लगेगा, इसके कारण will become mass of the body into acceleration of the frame। सो कितना g नेट इफेक्टिव नीचे है, g प्लस a, m अगर निकाल देंगे तो g इफेक्टिव मिलेगा ना। सो व्हाट इज द g इफेक्टिव ओवर हियर बेटा, g इफेक्टिव विल बिकम g प्लस a। आपको तरीका पता ही है बेटा, एम जी प्लस एम एम से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। सो टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी इफेक्टिव, दैट इज जी प्लस ए। आपको पता है कि अगर ये लिफ्ट नीचे जाती होती तो क्या करना पड़ता, सो इफ द लिफ्ट इज गोइंग डाउन, यस सर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा ए से तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा ना, सूडो फोर्स विल बिकम एम ए व्हिच इज एक्टिंग अपवर्ड। सो जी की जगह हो जाएगा जी माइनस ए। तो प्लीज बी अलर्ट, यस और नो। Okay, so lift going up with an acceleration a g plus a, lift going up with an acceleration a g plus a, lift coming down with an acceleration a, g की जगह क्या लिखना है, g effective g minus a। अच्छा कोई बता सकता है lift freely falling, आपको बता चुका हूँ मैं, g will become equal to 0, so time period will become infinity and lift going with constant velocity। So how much is g effective beta, g effective is g only। ये सब चीजें आपको पहले हम पढ़ा भी चुके हैं, प्लीज याद रखना है। सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट, लिफ्ट गोइंग अप g plus a, lift coming down g minus a, lift freely falling g will become 0 and lift going with velocity v, so it is an inertial frame of reference, तो g की जगह g रहेगा। always apply the formula 2 pi root of l by g effective। अब आगे देखते हैं। सपोज एक ट्रक है, ओके, द ट्रक इज देयर, इसके अंदर and the truck is accelerating forward, इसके अंदर हमने एक सिंपल पेंडुलम लगाया। सिंपल पेंडुलम ऐसे झटका खा के इधर आ जाएगा पीछे, यस और नो। ये क्या है, mg, ये क्या है, सूडो फोर्स, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, बोलो। सो इसका नेट फोर्स कैसे बना, इसका नेट फोर्स इधर बना, यस और नो, देखो। सो हाउ मच विल बी द नेट फोर्स, अभी करा चुका हूँ, अंडर रूट mg द होल स्क्वायर प्लस ma द होल स्क्वायर, और m से डिवाइड कर देंगे तो g इफेक्टिव मिल जाएगा। g इफेक्टिव विल बिकम व्हाट, अंडर रूट क्या भाई, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई रूट ऑफ l बाय g इफेक्टिव। g इफेक्टिव विल बिकम अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अबाउट दिस पोजीशन। सो इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पोजीशन, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। गेटिंग इट? अगर ये ट्रक आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। ये ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई रूट ऑफ l बाय अंडर रूट g स्क्वायर, ओके, प्लस a स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। पेज नंबर 14 पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम पे। पेज नंबर 14, एग्जांपल। When a spring stretched by 4 centimeter, its potential energy is U. So x1 is 4 cm. Potential energy is U. बोलो। If the spring stretches by 20 cm, how much is the potential energy? बेटा potential energy का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर है। Can I say potential energy is proportional to x square? अब एक ट्रिक यहाँ पर देखो, x कितना गुना चेंज हो गया, पहले 4 टाइम्स था, 4 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर, मतलब 5 गुना बढ़ गया।
तो एनर्जी 5 स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा बिकॉज इट स्क्वायर। तो जितना ये टाइम बढ़ता है उसका स्क्वायर टाइम्स ये बढ़ जाएगा। सो अगर ये 5 टाइम बढ़ता है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। सो कैन आई से पोटेंशियल एनर्जी 2 विल बी 25 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1। थोड़ा सी दिमाग लगाना है, आपको आंसर आ जाएगा। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल। क्या कह रहा है बेटा? बॉडी ऑफ मास इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग व्हिच इज ऑसिलेटिंग विद अ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकंड्स। सो इनिशियल टाइम पीरियड इज 4 सेकंड्स। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg, तो m2 will become m1 plus 4 kg. The time period increases by 2 seconds. तो पहले 4 था, अब हो जाएगा 4 plus 2, that is 6 seconds. Find the value of mass. अरे easy है, t is 2 pi root of m by k. Can I say time period is proportional to root m? So t1 upon t2 will become under root m1 upon m2. T1 कितना है? 4 है, बाद में 6 हो गया। M1 पहले M1 ही था, फिर हो जाएगा M2 M1 प्लस कितना? 4। ओके, सो दिस आंसर आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से आपको M1 का वैल्यू मिलेगा 3.2 kg। आई होप इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? One body is suspended from a spring of length L. Spring constantly has time period T. Now the spring is divided into 2 equal parts. हाँ भाई, and then joined in parallel. देखो पहले क्या कह रहा था? पहले कह रहा है spring of length L is there, mass M is there. Okay, K है, उसका time period रहेगा 2 pi root of M by K. बोलो। अब कह रहा है इसको काट काट के आधा आधा कर दिया मैंने। हाँ बेटा, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर लेंथ आधी हो जाती है तो के डबल हो जाता है, मतलब इसका के हो गया 2k, इसका 2k हो गया। अरे बोलो, अरे हुआ कि नहीं भाई? के इज इनवर्स टू एल अभी सिखाया सिनॉप्सिस में। तो अगर लेंथ आधा हो गया तो के डबल हो गया ना। अब कह रहा है पैरेलल में डाल दिया। अच्छा, पैरेलल का इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या रहता है? k1 plus k2। सो इट इज 2k plus 2k, दैट इज 4k, that is k equivalent. So now the time period, पहले टाइम पीरियड ये था, अब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 pi root of m। m तो m ही है, बट k की जगह क्या लिखना है? 4k। कहना इसे 4 रूट के बाहर आएगा तो it become 2 pi root of m by k by 2। कहना इसे this will be written as t1 by 2। yes or no sir? I hope you all are understanding क्या हो रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सिनॉप्सिस। तो अगर आपको सिनॉप्सिस बराबर से कर लेंगे तो ये सब सम्स बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। Okay, please read the synopsis of today. It is very very important. आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। There is a spring, mass m, उसके ऊपर एक छोटा मास लगाया गया m। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A block on a horizontal slab which is moving horizontally executes SHM. The coefficient of static friction between the block and the slab is mu. इसके बीच में coefficient of static friction mu है। Yes or no? If block is not separated from the slab, then determine the angular frequency. अब क्या हो रहा है, मेरी बात सुनो। देखो सपोज मैंने इसको खींच लिया, इसको खींचा मैंने, इधर खींचा, हाँ भाई, तो ये मास है, सही है क्या? ओके, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? सपोज मैंने इसको एम्पलीट्यूड ए पे जाके खींचा, यस और नो? कैन आई से इसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा व्हिच इज ओमेगा स्क्वायर? अरे भाई एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो जैसे मैंने इसको खींचा, स्प्रिंग में भी खिंचाव आएगा के एक्स विच इज के ए बिकॉज एक्स इज ए। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट एक्स इज ए ना, माइनस साइन मतलब इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बोलो, एक बात बता सकते हो? कह रहा है इसको इससे सेपरेट नहीं होना है, और इधर फ्रिक्शन है जो इसको चिपका के रखेगा।
अब हम लोग सिनेरियो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ना इधर बेटा, ये बड़ा एम, ये छोटा एम। कह रहा है छोटा एम बड़ा एम से जुदा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट सेपरेट। अच्छा, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए। कैन आई से ही इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा व्हिच इज सूडो एक्सेलरेशन लगेगा, व्हिच विल बिकम व्हाट, ओमेगा स्क्वायर ए। और आई कैन से it will be mass of the body, pseudo force लगेगा mass of the body into acceleration of the frame, and acceleration of the frame is this way, so pseudo force will be ulta direction, will become m into a, where a is omega square a। तो जब ये बड़ा है, मैं ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर एक झटका ऐसे लग रहा है, yes or no? भाई ट्रक अगर आगे जाएगी तो उसके अंदर बैठे हुए लोग कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे ना। वैसे ही ये सपोज इमेजिन करो ट्रक इधर जा रही है, झटका ऐसे मार रही है, तो इसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो ऐसे जाएगा ना, जाने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इन दिस डायरेक्शन। अब बचाएगा कौन, बचाएगा इधर का फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला इज म्यू एस एम जी। कैन आई से स्मॉल एम विल नॉट सेपरेट when mu s mg will be greater than equal to अगर हम लिखेंगे तो on the verge of slipping, बराबर है क्या, ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो can I say omega should be less than mu s g by a root of that। इतने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कम अगर आप इसको चलाएंगे तो वो नहीं जुदा होगा, और अगर इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आप ज्यादा चलाएंगे तो वो जुदा हो जाएगा, वो ऐसे उड़ जाएगा। अंडरस्टैंड, बिकॉज फ्रिक्शन उसको बचा नहीं पाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। आगे भी आप पढ़ना, कुछ डाउट होगा तो वी विल सॉल्व द डाउट्स आल्सो। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A spring force constant K is cut into two parts such that L1 upon L2, दो टुकड़े कर दिया, such that L1 upon L2 is N1 upon N2। Determine the force constant of each part, मतलब K1 निकालना है और K2 निकालना है। सब लोग इधर ध्यान से। I know that K is inverse to length, that will become K is equal to constant upon L। बोलो, तो K1 L1, K2 L2, और पूरा K इक्विवेलेंट विल बिकम C by L1 plus L2। भाई L1 will correspond to K1 हो गया, L2 will correspond, पूरा था तो कितना था, K था, पहले K था काटने से पहले। Can I say K1 upon K will be, उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइड कर रहा है by this will become L1 plus L2 by L1। So K1 upon K will become 1 plus L2 by L1। So K1 upon K will become 1 plus L2 by L1, N2 by N1। बोलो यार। So K1 will be K times of 1 plus N2 by N1। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? वैसे ही K2 by K करो, क्या हो जाएगा, K2 by K will become L1 plus L2 by L2 will become 1 plus L1 by L2, that is 1 plus N1 by N2। So K2 will become K times 1 plus N1 by N2। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपको K1 और K2 का वैल्यू मिल गया। Getting it what's happening? Now we are doing sums based on simple pendulum। बेटा सब लोग इधर ध्यान देना, सिंपल पेंडुलम के कुछ सम्स करते हैं। एग्जाम्पल पेज नंबर 18। Simple pendulum is suspended from the ceiling of a lift. When the lift is at rest, time period is t. What will be the acceleration? So that time period becomes t by 2. तो पहले t1 was t, t2 is t by 2। कह रहा है इसे कितने एक्सेलरेशन से जाना चाहिए। अच्छा, टाइम पीरियड कम हो गया। हाँ भाई, आपको मालूम है लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड इज 2 by root of L by G plus A। Can I say G plus A is there in the denominator? So time period बराबर है क्या, T is 2 by root of L by
जी प्लस ए, तो ये जी प्लस ए बढ़ेगा तो ही तो ये कम होगा ना, मतलब लिफ्ट को ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना है। तो अगर लिफ्ट नीचे आएगा तो ये हो जाएगा जी माइनस ए, तो ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, बट हमको तो t/2 मांगता है। ये बोलो ना भाई, कैन आई राइट दिस कंडीशन एज, ये ऊपर जाएगा तो g प्लस ए यहाँ पर कंडीशन आएगा, सो t शुड बिकम व्हाट, t/2 2 पाई रूट ऑफ l बाय हाँ g प्लस ए। यस और नो सर, क्या आपको समझ में आ रही है बात? एंड इनिशियल टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई रूट ऑफ l बाय g। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, can I divide both of them? It will become t/2 t 2 pi root of l by g plus a 2 pi root of l by g, कैंसिल, ये कैंसिल, रूट एल और रूट एल भी कैंसिल, ये टी और टी भी कैंसिल, तो ये हाफ, ये स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया। अरे बोलो भैया, दिस विल बिकम 1 upon g plus a, that is g upon g plus a, it will become 4g equals g plus a, so a will become 3g। so इतने एक्सेलरेशन से आपको ऊपर जाना है, the lift should go up with an acceleration of 3g so that the time period becomes what sir, t/2। तो ऐसे सब क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन द नीट। ओके, फॉर्मूला आना चाहिए, अप्लाई करने थोड़ा आना चाहिए, एंड यू विल गेट द आंसर्स। ओके, कोई बिग डेरिवेशंस नथिंग विल बी जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम इज 1 मीटर। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम होता है 2 सेकेंड्स, लेंथ इज 1 मीटर, ये दिया हुआ है। Determine the length of the seconds pendulum on the surface of the moon। हाँ भाई ठीक है, length on the surface of the moon चाहिए हमको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। Can I say time period is 2 pi root of l by g seconds pendulum। अगर seconds pendulum है, seconds pendulum का time period होता है 2 seconds, 2 उड़ गया, स्क्वायर करो, 1 pi square l by g, so L will become g by pi square। Length of the seconds pendulum का जनरल फॉर्मूला है g by pi square, g by pi square। अच्छा, अर्थ पे अगर हम देखते तो ओके कितना है, ये 1 है, क्यों 1 है, क्योंकि g और pi square अप्रोक्सीमेटली सेम है, g is 9.8, pi square is also 9.8, उड़ गया 1 आ गया। बट length of the seconds pendulum on the moon, what is g on the moon, g by 6 pi square, ये पाई स्क्वायर है, जी तो वैसे ही उड़ गया, तो कितना आ गया, 1/6 ऑफ मीटर। सो लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम ऑन द मून इज 1/6 मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? ऑलवेज रिमेंबर, लेंथ ऑफ द सेकंड्स पेंडुलम इज जी बाय पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If length of the simple pendulum is increased by 4%, means change in length upon original length is 4%. Percentage change in length कितना है, 4% है। Determine the change in time period। तो I want to find the change in time period with percentage is how much। अब इसको देखो, शायद फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था 11th स्टैंडर्ड के t is 2 pi root of l by g। Time period is proportional to root l। Time period is proportional to l raised to half। I told you multiply by the power, इसको ऐसे लिख सकते हैं, delta t by t will be half times delta l by l। errors and approximations में हम कर चुके हैं, yes or no। so delta t by t will be half times delta l by l in percentage is given as 4%, so this answer will also come how much, 2%। refer errors and approximations of chapter number 1 11th standard, yes or no sir। I told you multiply by the power। देखो ना, इसका पावर क्या, हाफ है ना, तो जो क्वेश्चन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हाफ इंटू 4 कितना हो गया, 2% आ जाएगा। ओके, ये चीज हमने आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई थी, इन एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द पावर। Okay. Next question which I will be discussing is the bob of simple pendulum is suspended by a metallic wire
If alpha is the coefficient of linear expansion and d theta is the change in temperature, then prove that percentage change in time period is 50 alpha d theta. ये मुझे प्रूव करना है कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कितना है. ठीक है, यस और नो. ये इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉल्यूशन, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ L by J. भी कर चुके हैं. टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट L. टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू L रेज़ टू हाफ. डेल्टा T by T is equal to half times डेल्टा L by L. अरे बोलते नहीं हो भाई, यस और नो. और अगर परसेंटेज मांगता है यहाँ पर तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस आंसर बाय 100. इतना आ गया. तो कैन आई से डेल्टा T by T इन परसेंटेज विल बी, ये कितना हो जाएगा 50 डेल्टा L by L. बोलो. अब सर ये तो आ गया. अब आपको जाना पड़ेगा थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में. प्रूव करना है ना. ये तो याद है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वाज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. अरे भाई याद आ रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई. अल्फा को लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L, ओरिजिनल लेंथ इज L, डेल्टा थीटा. So can I write this over here as delta L by L is alpha delta theta. So can I put delta L by L की जगह, हाँ बेटा 50 delta L by L की जगह alpha delta theta. Thus proved. I hope you all are getting the thing. Okay बेटा. So next time I'll be completing. I've completed simple pendulum. Next time I'll be doing compound pendulum, and I'll finish off the synopsis of this chapter. After that, we can start the solving part. Thank you.